ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے۔ ہمارا خدا جو موسموں کو کنٹرول کرتا ہے، آسمان اس کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، وہی دیکھی اور اندیکھی سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ ہوائیں، پہاڑ، وادیاں، ٹیلے، چشمے، ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہے جو ہر ایک چیز کو اپنے مقررہ ایام پر صادر کرتا ہے۔ سو آئیے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں خوبصورت پرستش کے لیے۔ سو میں چاہتا ہوں کوائر کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں گے۔ لاسٹ ٹائم خدا کے خادم نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں دعا اور شکر گزاری میں ترتیب سکھائی کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے، دعا ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور شکر گزاری ہم کن کن باتوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو شکر گزاری جو ہے وہ محض بہت بڑے ایونٹس کے لیے نہیں، بہت بڑے واقعات کے لیے نہیں، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہماری زندگی میں موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے، سب چیزوں کے لیے ہمیں خداوند کی کیا کرنی چاہیے؟ شکر گزاری۔ سو آج اسی چیز کو لے کے میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شاگرد ہوتا ہے، اس کی زندگی دعا اور پرستش اور شکر گزاریوں سے بھری ہوتی ہے۔ سو آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے شاگرد بننا۔ کیا ہے جی؟ شاگرد بننا۔ سو آج مختصر طور پہ میں آپ کے ساتھ اس تعلق سے چند ایک باتیں شیئر کروں گا۔ سو میرے ساتھ آپ جو حوالہ نکالیں گے وہ ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 50واں باب، اس کی 4 آیت۔ ایک مائک ذرا دے دیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 50واں باب اور اس کی 4 آیت۔ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ آمین۔ خداوند خدا نے مجھے کس کی زبان بخشی ہے؟ شاگرد کی، تاکہ میں کیا کروں؟ تھکے ماندے کی مدد۔ تھوڑا سا آگے بھی ذرا پڑھ دیجیے۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے جی، تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ تاکہ میں کیا کروں؟ شاگردوں کی طرح سنوں۔ آگے۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے جی، اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا۔ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ گمراہ نہ ہوا۔ بہتر اس سے کہ میں اس ورڈ کی ڈیفینیشن کی طرف آؤں۔ کچھ لنگوسٹیکل میٹرز ہیں، جو لسانی مسائل ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہمارے پاس شاگرد ہے، شاگرد کے لیے عبرانی لفظ لمود آیا ہے، لمود، جو کہ آدمیوں کو مارنے، آدمیوں کو مارنے۔ یہ مارنا وہ نہیں ہے جو کہ مار کٹائی، لڑائی وغیرہ، جیسے کہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ٹیچرز ان کو مارتے ہیں، یہ اس مارنے کی بات ہوگی۔ یہ آدمیوں کو مارنے، سدھارنے، جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو لفظ شاگرد ہے، یہ جو اس کے لیے عبرانی لفظ استعمال کیا جاتا ہے لمود، اس کے معنی ہے کسی کو جنگ کے لیے تیار کرنا۔ کیا کرنا؟ کسی کو جنگ کے لیے تیار کرنا، اس کو سدھارنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا، یہ اس کے اندر معنی اور مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے میتھاٹس، اور جو میتھاٹس لفظ ہے اس کے معنی ہے سیکھنے والا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ سیکھنے والا، سمجھنے والا، قبول کرنے والا۔
नंबर 1 सीखने वाला, नंबर 2 समझने वाला, और नंबर 3 कबूल करने वाला। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये शागिर्द के लिए जो लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है मैथाटिस, इस लफ्ज़ के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। यानी ऐसा शख्स जो हदायत को कबूल करता और किसी उस्ताद से सीखने वाला होता। ये लफ्ज़ जाहिर करता है कि एक शख्स ने उस्ताद के ख्यालात और कामों को अपने ज़हन और ज़िंदगी में कबूल कर लिया। ऐसा शख्स जो खुद को नज़्म व ज़ब्त में ले आए। इसके लिए जो अंग्रेजी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डिसाइपल, अंग्रेजी लफ्ज़ है इसके लिए डिसाइपल, और ये लफ्ज़ आया है डिसिप्लिन से। किससे? डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन का मतलब होता है नज़्म व ज़ब्त। ऐसा शख्स जो अपने आप को नज़्म व ज़ब्त में ले आए, तरतीब में ले आए, अपने आप को किसी के सपुर्द कर दे, अपने उस्ताद के कवानीन की पैरवी करे और उन अहकामात को जो उसका उस्ताद उसे सिखाता है हमेशा उस पर कायम रहे, उसको क्या कहते हैं? शागिर्द। यानी आम तौर पे इसके मानी है सीखने वाला, समझने वाला, कबूल करने वाला, सुधरा हुआ शख्स, नज़्म व ज़ब्त में आने वाला शख्स और अपने उस्ताद की पैरवी करने वाला शख्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक शागिर्द के ज़ुमरे में आती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स सीखता नहीं है, नज़्म व ज़ब्त में नहीं आता है, वो शागिर्द नहीं हो सकता। ये क्यों ज़रूरी है नज़्म व ज़ब्त में आना? जब हम कलीसियाओं में दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, कलाम को सीखते हैं, कलाम को सुनाते हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर एक मैनरिज्म, एक तरतीब, एक डिसिप्लिन होना बड़ा ज़रूरी है। आज कलीसियाओं को ईमानदारों से एक गुना जन एक दर्जे आगे बढ़ के उनको शागिर्द बनने की ज़रूरत है, ताकि हम डिसिप्लिन में आ जाएं, हम ऐसे लोग बन जाएं जो अपने उस्ताद यानी यीशु मसीह की तालीम की पैरवी करें, उसके नक्शे कदम पर चलें, उसकी ज़िंदगी को फॉलो करें और उसकी तालीम को अपनी ज़िंदगी में कायम रखें। याद रखें कि मैं जितनी देर ये मैसेज पेश करता हूँ, जब भी मैं लफ्ज़ उस्ताद इस्तेमाल करूँ तो ये सीधा इशारा यीशु मसीह की तरफ हो, क्योंकि हम सब जो हैं हम इंसान हैं, हमें कमियां कमजोरियां मौजूद हैं, हमारी ज़ात में पाई जाती हैं, लेकिन एक ही कामिल उस्ताद है, वो हमारा मुनज्जी यीशु मसीह है। उसने फरमाया कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो तो क्या कहते हो? ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। वही ये दावा कर सकता है कि मैं खुदा हूँ और मैं उस्ताद हूँ। हम नाकिस इंसान अपनी महदूद अकल में बहुत सारी कमियों और कमज़ोरियों के बावजूद उस्ताद नहीं बन सकते। हम सिर्फ एक दूसरे की मदद और रहनुमाई कर सकते हैं। इसलिए हम सब के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने उस्ताद यानी यीशु मसीह की ज़िंदगी को फॉलो करें। सो शागिर्द कौन है? पहला सवाल हमारे पास ये है, शागिर्द कौन है? जो अपने उस्ताद की पैरवी करता है। मेरे साथ कहिए, जो अपने उस्ताद की पैरवी करता है, जो अपने उस्ताद के कलाम का लिहाज करता है। आज कलीसियाओं में जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह और रूह कुद्दस के कलाम का लिहाज नहीं करते। हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जब तक हम चर्च में मौजूद होते हैं ये रूहानी नुक्ता नज़र से बहुत अपर लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। हम अपने खुदावंद के कलाम का लिहाज करना भूल जाते हैं। फिर नंबर 3, जो अपनी बुलाहट के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। हम में से हर एक शख्स के पास उसकी अपनी एक इनफरादी बुलाहट मौजूद है। खुदा ने किसी को क्वायर लीडर होने के लिए बुलाया है, किसी को एल्डर होने के लिए बुलाया है,
किसी को डीकन होने के लिए बुलाया है, किसी को मौलम होने के लिए बुलाया है, किसी को पासवान होने के लिए बुलाया है और किसी को प्रस्तिश करने के लिए बुलाया है। हर एक के पास खुदा ने एक बुलाहट रखी है और हम में से कोई भी शख्स बुलाहट के बाहर नहीं है। हम सभी जो इस दुनिया में मौजूद हैं, कलीसिया का हिस्सा हैं, ईमानदारों की जमात का हिस्सा हैं, हम में से हर एक के पास कोई ना कोई बुलाहट मौजूद है और हमने अपनी जिंदगी जो है वो अपनी बुलाहट के मुताबिक बसर करनी है। फिर नंबर 4, जो अपने उस्ताद यानी मसीह खुदावंद को अव्वल दर्जा देता है, जो अपने उस्ताद यानी मसीह खुदावंद को क्या करता है, अव्वल दर्जा देता है, वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार रहता है। उसको शागिर्द बनने के लिए जितने भी मसाइल, परेशानियों, मसाइल से दो चार होना पड़े, वो उनकी परवाह नहीं करता। आज हमारी इस दुनिया के अंदर शागिर्दियत पे इतना जोर नहीं दिया जाता, लेकिन मसीह खुदावंद के जमाने में किसी भी बड़े उस्ताद का शागिर्द कहलवाना बहुत बड़ी बात थी। लोग खुशकी और तरी का फासिला तय करते थे किसी का शागिर्द बनने के लिए। यीशु मसीह ने फरीसियों को यह वाज़ेह तौर पे कहा था कि तुम एक शागिर्द, एक मुरीद करने के लिए खुशकी और तरी का फासला तय करते हो, और शागिर्द भी यही करते थे और वो बड़े एजाज की बात समझते थे। मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े एजाज के साथ, बड़े इस्तेहकाक के साथ, बड़े जोश के साथ ये बात बताता है कि मैंने अपने उस्ताद उस वक्त के बहुत बड़े रुबान यानी रब्बी गैमलियल के कदमों में बैठ के तालीम पाई। और जो शागिर्द थे यीशु मसीह के पैरोकार थे, वो भी बड़े फख्र से बताते थे कि हम अपने उस्ताद यानी यीशु मसीह के शागिर्द हैं। आज हमारी इस दुनिया के अंदर उस्तादी और शागिर्दी का निज़ाम तकरीबन खत्म हो चुका है। आज हमने इस चीज को खत्म कर दिया, इसलिए आज हमारी कलीसियाओं के अंदर से डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, कवानीन, सुधारने वाली बातें हमें चुभती हैं। हम जब किसी की इस्लाहकारी करते हैं, ये जानकर कि आप मसीह के शागिर्द हैं, आप मसीह का बदन हैं और आप मसीह के बदन के आज़ा हैं और आप उसकी कलीसिया का हिस्सा हैं, आप उसके खानदान का हिस्सा हैं। जब हम किसी की भी इस्लाहकारी करते हैं कि शागिर्दों को ये बात ज़ेबा नहीं देती, तो वो फौरन गुस्सा कर देता है। ऐसे ही है, हम कहते हैं कि आपको ऐसे दुआ नहीं करनी चाहिए, लाओ और दुआवा भी नहीं करिए। हम मतलब सीखने वाली जो स्पिरिट है हमारे अंदर तकरीबन वो खत्म हो चुकी है। हम किसी को बताते हैं कि ये जो प्रस्तिश में इस्तेमाल होने वाली शायरी है ये ठीक नहीं है, तो वो फौरी तौर पे हमें बताता है, लाओ तो शायर पागल से जिन्हें लिखे। जी बिल्कुल हो सकता है, जिसने बाकायदा तौर पे इल्म इलाहियात को नहीं सीखा वो शायर बेवकूफ़ हो सकता है। अभी ये जो लास्ट में गीत गाया मैं पता ये इतनी खूबसूरत शायरी है, बहुत कमाल की। ऐसे गीत लिखे जाने चाहिए। इसकी शायरी पे जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई किसी ने बैठ के सोच के अपनी जिंदगी पे गौर करके ये शायरी लिखी है। इस तरह की शायरी होनी चाहिए, इस तरह के गीत होने चाहिए, इस तरह के ज़बूर गाए जाने चाहिए। सो वो हर कीमत को अदा करने के लिए तैयार रहता है। फिर वो नए अहदनामे की मसीहत को बहाल करने का आरज़ूमंद होता है। वो चाहता है कि वो बेदारी, वो जोश, वो जज्बा, वो रूहानियत जो पहली सदी की कलीसिया के अंदर मौजूद थी वो आज की कलीसिया के अंदर भी होनी चाहिए। ये एक सच्चे शागिर्द की निशानी है। अगर हम हर एक चीज ट्रेडिशनली करते हैं, रवायती तौर पे करते हैं, आते हैं रस्मी तौर पे चर्च में आए, दुआ की, प्रस्तिश की, हदिया दिया, कलाम को सुना, चले गए, सो ये शागिर्दियत नहीं है। शागिर्दियत ये है कि हम नए अहदनामे की उस पहली सदी की कलीसिया को, उसकी बेदारी को, उसकी रूहानियत को फिर से बहाल करने के आरज़ूमंद बन जाए। ये शागिर्दियत है। याद रखें
खुदावंद अपने पैरोकारों को मुख्तलिफ नेमतें देता है। बाज़ को पासवान बनाता है, बाज़ को नौजवानों में खिदमत और बाज़ को क्वायर लीडर बनने की तौफीक बख्शता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर ईमानदार को शागिर्द बनने के लिए बुलाया गया है। चाहे वो क्वायर लीड करता है, चाहे वो हमारी तरह यहाँ पे खड़े होकर कलाम सुनाता है, चाहे वो पासवानी खिदमत करता है, चाहे वो सामने बैठ के प्रस्तिश करता है, चाहे वो शुक्रगुजारियों की दुआ करता है, चाहे वो पूरी कलीसिया को दुआ में लीड करता है, हर एक शख्स के लिए यह लाजिम है कि वो शागिर्द बने। क्या बने? शागिर्द बने। मसीह यीशु ने मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 19वीं आयत में कहा था कि सबको शागिर्द बनो। कितने लोगों को? आधे लोगों को, सबको। ये तो नहीं कहा था कि इधर वालों को शागिर्द बनाओ और इधर वालों को रहने दो। सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, और उनको उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। शागिर्द को तालीम देना इंतहाई जरूरी है। शागिर्द के लिए तालीम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कीमती असासा है। अगर शागिर्द तालीम हासिल नहीं करेगा तो वह शागिर्द नहीं हो सकता। वो नए इनामे की उस कलीसिया को बहाल नहीं कर सकता। क्या एक पासवान, इबादत गुजार, बाइबल मुकद्दस का मुताला करने वाला, रहनुमा या दीगर आम काबिल इस दावत से मुस्तस्ना है? क्या वो इस दावत से बाहर है कि उसको शागिर्द बनाया जाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम किसी को कहते हैं कि हमने बाइबल क्लास शुरू की है तो प्लीज़ आइए, आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें और बाइबल स्टडी लें, तो इसका मतलब ये नहीं है अजीज़ों कि हम आपको अपने शागिर्द बनाना चाहते हैं। हम आपको खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनाना चाहते हैं, रूह कुद्दस के शागिर्द बनाना चाहते हैं, जो हकीकी मानों में हमारा उस्ताद है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं। उसने भरे मजमा में हजूम में अपने बाजू को ऊपर करके बुलंद करके बड़े दावे के साथ कहा, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? हम उस अजीम हस्ती का आपको शागिर्द बनाना चाहते हैं और उसी की तालीम आपके सपुर्द करना चाहते हैं और उन बातों को आपके सपुर्द करना चाहते हैं ताकि आप उसकी खूबसूरत जिंदगी की पैरवी करें। हालेलुया। खुदा हमारी रहनुमाई करने वालों से शागिर्दियत की तवक्का रखता है। खुदा चाहता है कि हम में से हर एक शख्स जो है वो शागिर्द बने। हकीकी शागिर्दियत का आगाज कहाँ से होता है? पॉइंट नंबर 1 सुनिए। जब कोई शख्स तौबा करता है, बैप्टिस्मा लेता है, वहीं से उसकी शागिर्दियत का आगाज हो जाता है। यीशु मसीह के ज़माने में जो फरीसी लोग थे वो हमेशा किसी को भी मुरीद करने के लिए, शागिर्द करने के लिए, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, तालीम देने से पहले उसको बैप्टिस्मा देते थे और अपने नाम का बैप्टिस्मा देते थे ताकि ये जहाँ पर जाए ये मेरे नाम का प्रचार करे, लोगों को बताए कि मैं फलां उस्ताद का शागिर्द हूँ। इसलिए शागिर्द बनने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है नई पैदाइश। वो क्या है? क्या है जी? मेरी बातें आपको ठीक तरह से समझ आ रही है? सो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ रहें। सो शागिर्द बनने का पहला स्टेप क्या है? नई पैदाइश, बैप्टिस्मा पाना, तौबा करना। पहली बात इसमें सुन लीजिए, जब कोई शख्स महसूस करता है कि वो गुनहगार है, गुमराह है, रूहानी तौर पर अंधा है और खुदा के हुजूर बरहना है, वहां से उसकी शागिर्दियत का आगाज हो जाता है। नंबर 2, जब वो इकरार करता है कि वो खुद को नेक कामों या चाल चलन के जरिए बचा नहीं सकता, वहां से उसकी शागिर्दियत का आगाज हो जाता है। जब वो ईमान के वसीला से मसीह को अपना
شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، وہاں سے اس کی شاگردیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کلیسیا کے رہنماؤں اور ایمانداروں کو اس بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے کہ متی 28 باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں مندرج ارشاد اعظم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں شاگرد بنانا اور تعلیم دینا انتہائی لازم و ملزوم ہے۔ اب جب کہ ہم شاگرد بن جاتے ہیں یا شاگردیت کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو اگلا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاگردیت کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ شاگرد کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ پہلی بات، تربیت میں، شاگردیت میں سیکھنا، عزم کرنا اور راست بازی پر عمل کرنا شامل ہے۔ جو شخص راست بازی پر عمل نہیں کرتا، وہ شخص جو تربیت نہیں پاتا، وہ شخص جو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کبھی شاگرد نہیں بن سکتا اور شاگردیت کی خصوصیات اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔